जिंदाबाद। জয় ঝাড়খণ্ড। হ্যালো, তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাগত করবেন, ফুলমালা দিয়ে আপনি স্বাগত করেন। এখানে মহিলা সমিতি উপস্থিত আছেন। স্বাগত স্বাগত কার্যক্রম সমাপ্ত। अभी এখন আমাদের মঞ্চে বক্তা মুখ্য বক্তা এসেছেন আমাদের কল্পনা ম্যাডাম। আসুন কল্পনা ম্যাডাম, আপনার চুনাবী সভাকে সম্বোধন করবেন। লক্ষ্মণ টুডু আপনাদের চুনাবী সভাকে সম্বোধন করবেন। সবাইকে জোহার। আজকের আপনাদের এই চুনাবী সভাতে আমাদের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার এই যে স্টার প্রচারক শ্রীমতী কল্পনা সোরেন আপনাদের কাছে আসেছে। আমরা এতকুটাই বলবো, এতকুটাই বিনতি করবো, এইটা আগ্রহ করিব কি এই যে যুগসলাই বিধানসভা ক্ষেত্রটা, এই ক্ষেত্রের যদি কেউ মঙ্গল করতে পারে তো আপনাদের আদরে প্রেম আদর নিয়ে ভালো प्रत्याशी আপনাদের स्थानीय विधायक मंगल कालांदी के हमारे वोट देते होगा, क्योंकि आज आने वाला समय में इस राज्य में हम गरीब जनताओं, हम अपने किसान, हम अपने महिलाओं की उन्नति और सुख समृद्धि की लाना है। तो हमरा के झारखंड मुक्ति मोर्चार खूंट खाटी मानुषेर पार्टीर हमरा के सरकार बनाते होबे। এই জন্য আগামী আপনাদেরকে আজকে সংকল্পিত হবে। আমরা বিনতি করতে আসেছি আগামী 13 তারিখে যে ভোটটা হবে এই ভোটে আমরাকে তীর ধনুষ ছাপে ভোট দেয়, আমরাকে এই রাজ্যে হেমন্ত সোরেনের সরকারকে বানাতে হবে। আর 5 সাল ঝাড়খণ্ডে স্থায়ী সরকার, 5 সাল আগামী 5 সাল গরিব গুরবাদের উন্নতি করবার জন্য আমাকে হেমন্ত সোরেনের সরকার বানাবার আছে। এই জন্য আমি বেশি কথাই বলবো না। তখন দুপুর থেকে তোমরা আসে, আমরা কল্পনা সোরেন ম্যাডামের আমরা ইন্তজার করছি, আপনার এই সন্দেশটা নিয়ে আসেছে। আমি এই কথাটাই বলে আমি একটু আদিতপুরে আরো প্রোগ্রাম আছে সেখানে যাব। এই কথা এই আপিল করে আমি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবকে নমস্কার, জোহার। হ্যালো, অনেক অনেক ধন্যবাদ লক্ষ্মণ টুডুজিকে। তো এখন আমি অনুরোধ করছি আমাদের গঠবন্ধনের প্রত্যাশী মঙ্গল কালিন্দী ভাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে গোবরঘুষি শহীদ পয়েন্ট ময়দানে এই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং গঠবন্ধনের এই জনসভায় মঞ্চে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত আছেন আমাদের স্টার প্রচারক শ্রীমতী কল্পনা সোরেন। সবাইকে জোহার জোহার। আজকে সময় কম আছে, আমাদের মুখ্য অতিথি স্টার প্রচারক আপনাদের বহিন, আপনাদের বিটি আমাদের বিচে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী কল্পনা সোরেন। আপনারাকে সম্বোধন করবেন। নিশ্চিত রূপে আপনারা জানেন कि আমি 16-17 বছর মোটর সাইকেলে ঘুরে মানুষের সেবা করেছি। আজ আমাদের ভগবানের রূপে কেউ আছে তো হেমন্ত সোরেন বাবু। উনি টিকিট দিয়ে আমাকে একটা গরিব মজদুরের বেটাকে এই যুগসলাই বিধানসভার টিকিট দিয়ে আপনাদের আশীর্বাদে যুগসলাই বিধানসভার সেবক বানাইছে। আপনারা জানেন কি আজ আমরা এক বড়াম অঞ্চলে সরকারি ডিগ্রি কলেজ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাবু দিয়েছে। মাচায় আমরা হাসপাতাল খোলাবার কাজ করেছি। আমাদের গর্ভবতী বহিন বিটি গিলা আল্ট্রাসাউন্ড করাবার জন্য সবাই জমশেদপুর যায়, কিন্তু আমি চিন্তা ভাবনা করলি যে আমাদের বহিন বিটিদের জন্য, দিদিদের জন্য আমাদেরকে এখানে একটা আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন লাগাতে হবে। আর আমরা মাচা হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড লাগাইছি। আজ আমাদের বহিন বিটি গিলা দিদিরা সবাই ওথায় আল্ট্রাসাউন্ড করাবে। নিশ্চিত রূপে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাবু যে কাজটা করে দিয়েছে
17 বছরে বিজেপি আসু গঠবন্ধন সরকার নাই করে কোনোদিন এই কাজ। আপনারা চিন্তা ভাবনা করুন, যখন 2009 ওই গ্রামের ব্যক্তি, গ্রামের ছেলেকে আপনারা আশীর্বাদ দিয়ে এই যুগসলাই বিধানসভা, এই বনাম পটমদা ক্ষেত্রের আপনারা জনপ্রতিনিধি বানাবার কাজ করলেন, তখন আপনারা আজ গোয়া আছে আমাদের এখানে, আমাদের গোবর ঘুষির যত বুড়ি মা গিলা আছে, তখন ও কলা ছাপের জনপ্রতিনিধি এই গোবর ঘুষিয়ে আসেছিল, তখন বুড়ি মা গিলা ওরাকে বলল যে হ্যাঁ রামচন্দ্র সহিস বাবু, তুমি তো এখন এমএলএ বনে গেলে, আমাদের বৃদ্ধা পেনশন গিলা বুড়িদের করে দাও। তখন রামচন্দ্র সহিস কি জবাব দিল? বলল আমি জিতলি তবেই তোরা রানী হইলি। এইরকম শব্দ আছে, এইরকম শব্দ আমাদের মা বোন গিলাকে, আমাদের বুড়ি মা গিলাকে অপমান করবার কাজ এই আসু পার্টি কলা ছাপের ক্যান্ডিডেট করেছে। 10 বছর এখানে শাসন করেছে। 10 বছরে আমাদের গরিব দুঃখী গিলাকে নাই দেখে আমরা দেখি, আমরা ভোকে শোষে থাকে গরিব মানুষ গিলার, গরিব বিটির বহিন বিটাইর বিয়া করে মঙ্গল কালেন্দি পৌঁছে সেবা করতে, সাধ্য ঘরে মঙ্গল কালেন্দি পৌঁছে সেবা করতে, হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করাবার জন্য, গরিব দুঃখীর জন্য যদি কেউ পৌঁছে তো মঙ্গল কালেন্দি পৌঁছে। আমার মা বাবা নাই, আমার ঘর সংসার নাই, আপনারাই আমাদের পরিবার। নিশ্চিত রূপে 13 নভেম্বরে আপনাদেরকে সবাইকে, আমাদের মা বোন ভাই বন্ধু, আমাদের ইউয়া সাথী গিলা, আমাদের ছাত্র ছাত্রা গিলা, আপনাদের জন্য আমরা বড়ামে ডিগ্রি কলেজ আনিয়ে দিয়েছে সরকারি, আমাদের ছাত্র ছাত্রা স্টুডেন্ট পড়বে। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আমাদের তীর ধনুষ আমাদের পরবে লাগে, আমাদের বিহাগরে লাগে, আমাদের পূজা পাঠে লাগে, আমাদেরকে তীর ধনুষকে 13 নভেম্বরে 1 নম্বর বটন দবায় তীর ধনুকে ভোট দিয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাবুকে বানাতে হবে। কত লোক তীর ধনুষে বটন কত লোক দবাবে? হাত উঠাও। তীর ধনুষে কত লোক ভোট দেবাবে? তীর ধনুষে কত লোক ভোট দেবাবে? সবাই লোক হাত উঠাই দাও। সবাই লোক সকাল 6 বাজলে যায় তীর ধনুকে 1 নম্বরে ভোট দিয়ে আমাদের, আপনাদের ভাই, আপনাদের বেটা, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাবুকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বানাতে হবে, তবে যাই আমরা বাঁচবো। আপনারা জানেন কি কেন্দ্র সরকার, এই মোদী সরকার কি করেছে আপনারা এখনো জানেন নাই। আপনারাকে বলে দিচ্ছি, এরা যে আমাদের ভগবান বিরসা মুন্ডার সিএনটিএসপি আর তারপরে আমাদের এই জল জঙ্গল জমিনকে বাঁচাবার জন্য আমাদের আপনাদের দাদা পরদাদারা এই জল জঙ্গল জমিনকে বাঁচায় রাখেছে। কেন্দ্র সরকার এই বন কানুনে সংশোধন করেছে। কি সংশোধন করেছে? সংশোধন করেছে যে আমাদের এখানকার প্রধানরা আছে ওদের পাওয়ার সিজ, আমাদের গ্রাম সভাদের পাওয়ার সিজ, আমাদেরকে আড্ডানি আম্বানিকে এই জল জঙ্গল জমিন আমাদের পাহাড় খনিজ সম্পত্তি গুলাকে দিয়ে দেবে, ওরা লুটে নিয়ে যাবে। লেকিন আপনারা গ্রাম সভা, গ্রাম প্রধান যদি বলতে যাবে তো আপনাদের উপরে লাঠি চার্জ করবে, আপনাদেরকে জেল পাঠাবে। যেভাবে আমাদের হেমন্ত সোরেন বাবুকে এরা জেল পাঠাবার কাজ করলো, ওই জন্য বন কানুনে চেঞ্জিং করে দিল, সংশোধন করে দিল কেন্দ্র সরকার, আর গ্রাম সভাকে খতম করে দিল, আমাদের প্রধানদের পাওয়ার খতম করে দিল। আজ আপনারা চিন্তা ভাবনা করুন, ইয়ার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ নাই বলে, যদি কেউ বলেছে তো আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাবু বলেছে। হেমন্ত সোরেন বাবু কি বলল? যে এই বন কানুনটাকে সংশোধন করছো, আমাদের বন ভিতরে আমাদের লোক থাকে, ওদের জন্য যদি এই কানুনটাকে চেঞ্জ করেছ তো আমরা বরদাস্ত করব না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বাবু রাষ্ট্রপতিকে লিখে দিয়েছে কি বন কানুনে সংশোধন হবার নাই চাই, আমাদের বন ভিতরে আমাদের লোক গিলা থাকে। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ, সময় কম আছে। আর আমাদের শ্রীমতী কল্পনা সোরেন আপনাদেরকে সম্বোধন করবেন, আপনাদেরকে বলবে, অনেক কিছু বলবার ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন
আমার মা বাবা নাই, ঘর সংসার নাই, আমি মানুষের সেবা করতে আসেছি। যতদিন আমি জীবিত আছি এই বরাম পটমদার লোকের মঙ্গল কালিন্দী সেবা করবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, সবাইকে জোহার। ধন্যবাদ। তো এখন আমরা যে অনেকক্ষণ ধরে পেকে ঝাড়খণ্ডের স্টার প্রচারক সম্বোধন করবেন কল্পনা কল্পনা সোরেন জিন্দাবাদ, কল্পনা সোরেন জিন্দাবাদ। जिंदाबाद जिंदाबाद। এখানে উপস্থিত মা মসি দাদা ভাইরা সবাইকে অনেক অনেক नमस्कार प्रणाम और सभी को मेरा झारखंडी जोहार है। आप लोग सब जानते हैं ये चुनावी सभा है, चुनाव का समय है, अब तारीख भी आ रहा है, 13 तारीख को मतदान भी होना है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बात बताने के लिए आई हूँ, आज ये झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार, ये महागठबंधन सरकार आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके आरक्षण के लिए, आपकी हर एक उन बुनियादी जरूरतों के लिए खड़ी रहती है जिनकी आपको जरूरत है। आज झारखंड में जब ये चुनाव चल रहा है, इस 5 वर्ष में 2019 में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुने गए थे। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आपका आशीर्वाद मिलने के बाद जैसे ही वो जगह में आते हैं, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में कोविड आ जाता है। 2 साल हम लोगों ने कोविड में अपने जान की, अपने माल की रक्षा की, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब पुरानी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, ये कोई भी योजना अगर ये लोग देने की कोशिश भी करते थे तो लंबी लंबी कतार रहती थी, वर्षों वर्षों का इंतजार रहता था। चाहे हम आपकी पेंशन की योजना हो, चाहे कोई योजना हो, लेकिन ये धरातल पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचती थी। लेकिन ये आपकी अपनी सरकार है। इस सरकार में आज 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ा गया है। सर्वजन पेंशन की योजना के तहत 1000 रुपए की राशि अक्टूबर तक उनके अकाउंट में जा चुका है। आज अबुआ आवास हो, 25 लाख लोगों के परिवारों को अबुआ आवास दिया गया है और दिया जा भी रहा है, इसकी राशि भी पहुंच रही है। 3 कमरे का अबुआ आवास, ताकि गरीब गुरबा के सर के ऊपर में एक मजबूत छत हो। आज हम बात करते हैं अपने अधिकार की। आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंडी सरकार ने पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित करा के आगे भेजा और वहां केंद्र सरकार में गृह मंत्री इसको दबा के बैठे हुए हैं। ये झारखंड बनने के बाद पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करने वाले ये बीजेपी के लोग थे जब झारखंड की स्थापना हुई थी। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में अगर हम आरक्षण की बात करें, अगर हम अपने जन मुद्दों की बात करें, तो ये उनमें हमारा साथ देंगे। यहाँ पे आजसू के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, जब हम पिछड़ों का 27% का आरक्षण की बात करें तो उनमें दम नहीं था कि इन जनहित मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर ये हमारे साथ खड़े हो। ये खड़े होते हैं सिर्फ अपने पार्टी के साथ, ये जनमानस के साथ में खड़े होने वाले नेता नहीं है। ये आप लोगों को बरगलाने के लिए आते हैं, आप लोगों को बांटने की बात कहते हैं। हम लोगों के बीच में जब हम लोग मिलजुल करके रहते हैं तो हम लोगों को बहकाने की बात करते हैं। आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे सर्वजन पेंशन की योजना हो, अबुआ आवास की योजना हो, हरा राशन कार्ड की योजना हो, हमारी बच्चियों के लिए सावित्री बाई फूले की योजना हो,
सावित्रीबाई फूले की योजना के तहत कक्षा 8 से 12 कक्षा तक हमारी बच्चियों को 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। क्यों मिलती है बेटियों को ये राशि? ताकि इनकी पढ़ाई कभी आर्थिक तंगी से ना रुके। आज झारखंड में सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्या है? सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, जैसी व्यवस्था रहती है, वैसी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में मिलेंगी, ताकि हमारे झारखंड के बच्चे पढ़ करके शिक्षित हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। और आज जब हम इस मंच पे के अपनी झारखंड की जनता की आवाज, उनके मुद्दों की बात कह रहे हैं और डट करके कह रहे हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन बातों को समझे। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इस झारखंड में आपसे छिपी नहीं हुई है। लेकिन आज झारखंड में बड़े बड़े नेता बाहर से आते हैं, हमें बांटने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को बरगलाने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा, कि अगर झारखंड में विकास कोई कर सकता है, तो ये आपकी अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार कर सकती है। आज 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 24 वर्ष में 18 से 20 वर्ष ये बीजेपी के लोग शासन करते हैं। इन्होंने क्या किया? इनकी जब सरकार रहती थी, भूखों से मौत हुई है झारखंड में, भूखों से मौत हुई है। यहाँ के लोगों की कोई भी चिंता नहीं रहती है, और झारखंड की चिंता तो एकदम भी नहीं है। आज झारखंड के में आपके दादा, आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग करता है, केंद्र सरकार से मांगता है। ये मैं पूछना चाहती हूँ, आपको पता है वो किसका पैसा है? वो पैसा आप लोगों का है, झारखंड वासियों का है। इससे आप लोगों के लिए अच्छे स्कूल बन सकते थे, इससे आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बन सकती थी, आवागमन के रास्ते बन सकते थे, एक बुनियादी रोजगार, शिक्षित लोग यहाँ पर में ऐसे अनेक उद्यम लगाए जा सकते थे, जिसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलता। लेकिन ये केंद्र में बैठे लोग झारखंड का अपना, हमारा बकाया पैसा, हम भीख नहीं मांगते हैं किसी से, हम झारखंड का अपना खुद का पैसा मांग रहे हैं। और ये रॉयल्टी चार्ज यहाँ झारखंड का है, और ये केंद्र सरकार कितने वर्षों से दबा के बैठी है। इनके अपने पार्टी में भी कितने सारे नेता हैं, लेकिन किसी की इतने वर्षों में हिम्मत नहीं हुई कि झारखंड का पैसा उनसे मांगने की जुर्रत कर पाए। लेकिन ये हिम्मत दिखाई है हेमंत सोरेन ने। आज जुग सलाई में 2019 में आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, और आप लोगों ने हमारे भैया मंगल कालंदी भैया को आपकी सेवा का मौका दिया। ये भैया दिन रात, सुबह से लेकर रात तक आप लोगों की जरूरतों के लिए खड़े रहते हैं। आपके दुख हो, आपका सुख हो, आपकी कोई भी जरूरत पाते हो, वो समझने का प्रयास करते हैं। आज लोग हमारे बीच में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आजकल यहाँ पर में झारखंडी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज झारखंड में मैं आप लोगों से बताना क्या, पहले पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों का यहाँ बिजली बिल माफ हुआ है? जरा हाथ उठा के बताइए तो, किसका बिजली बिल माफ हुआ है? सबका हुआ है? अच्छा बताइए, ये बिजली बिल माफ किसने किया है? किसने किया है? महंगाई का बोझ, महंगाई की मार ये केंद्र सरकार हमें उपहार में देती है, लेकिन इस भार को
तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। आज हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें आज लोन लेकर के, ऋण लेकर के अपने खेतों में काम करते थे, दिन भर खटते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोन हो, ऋण हो, ये सर के ऊपर में तकलीफ होता है। गरीब गुरबा कहां से इतने सारे पैसे लेकर के काम करेगा? कहीं ना कहीं से ऋण लेगा। अब वो ऋण को चुकाने के लिए उसको इतनी तकलीफ, इतनी बेचैनी, आज उस बेचैनी को भी कम करने का काम किया है झारखंडी सरकार ने। आपको जान करके खुशी होगी कि एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ हुआ है, और वो भी झारखंडी सरकार ने किया है। आज भारी तादाद में हमारी बहनें आई हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड बने हुए 24 साल हुए हैं, और ऐसी कोई सरकार इससे पहले नहीं आई कि हमारी बिटिया, हमारी बहनों, हमारी माताओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना लेकर आए। कोई योजना आई थी पहले आप लोगों के लिए? आज झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आई है। 18 वर्ष से 49 वर्ष की बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, और ये 3 से 4 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। इस वर्ष के दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2500 होने वाली है प्रति माह, साल का 30,000। ये हमारी बहनों, हमारी माताओं को मजबूती देने का काम है, ताकि आप लोगों को किसी के सामने में हाथ फैलाना ना पड़े। जो माताएं बहनें घर में रह करके अपने परिवार की पूरी निष्ठा के साथ में सेवा करती है, और अपने बच्चे को अगर जब जन्म देने से पहले 9 महीने गर्भ में भी रखती है, तो पूरे प्यार से रखती है, और जब बच्चा पैदा करने की बारी होती है, उस समय दर्द सह करके उस बच्चे को इस धरती में लेकर के आती है। आज एक माँ समर्पित रहती है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। इस बार झारखंड में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी नानी सब खड़ी है हेमंत सोरेन के साथ, क्योंकि उनको सम्मान देने का काम अगर कोई किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है। आज यहाँ पर मैं 13 तारीख को अभी आप लोगों का मतदान होना है, और जुगसलाई विधानसभा में आपको एक नंबर पे बटन दबाना है, जिसमें चुनाव चिन्ह रहेगा तीर धनुष। कौन सा तारीख है? दोबारा आप लोग सब लोग मुझे जोर से बताइएगा। मतदान की कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और 13 तारीख में क्रम संख्या कौन सा है? हाथ उठा के एक नंबर दिखाइए तो सबके सब। कौन सा नंबर है? एक नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? दोनों हाथ उठा करके अपने भैया को, हमारे भैया को, मंगल कालंदी भैया को फिर से आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। ये वो बेटा है, ये वो बेटा है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, और वो दूसरे कोई नहीं, आप सब लोगों के लिए जीता है। आप लोग इनका सबसे बड़ा परिवार है, और मैं ये समझती हूँ कि जब परिवार का आशीर्वाद अपने बेटे पर हमें हो, तो बेटा भी पूरी श्रद्धा पूर्वक आपकी बातों का, आपके जन मुद्दों का विधानसभा में जिस तरीके से पहले भी बातें उठाते आ रहे हैं, उन बातों को और बुलंदी के साथ में उठाएंगे। यही मैं आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहती हूँ। नोंडे जरवा वाकान सनम माझी बाबा नाइके गोड़ेद साउते माझी बूढ़ी चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिसी को सनम को के इंसन पास्टा कोन आयमा एमा गुण मनाओ जोहार। आपे तो बढ़ाई गया है नुआ चुनाव रे 2024 विधानसभा रिया चुनाव कान गया है। आपे या दाड़े जहां लेका 2019 रे आपे एम कते दादा मुख्यमंत्री बनाव लेता है और नुई दादा विधायक बनाव लेता है। उनका के आपे तो बढ़ाई गया है। आपे या दादा, आपे या बेटा, अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फूले रोजगार सृजन योजना, अब हरा राशन कार्ड, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, कृषि ऋण माफी लेकर नौका नौका के कमी लेता है। और नुआ जहाँ कमी हुई लेना है उन्हें 5 बछोर रे 12 बछोर घटाव में 12 बछोर तो कोविड रे चलाए ना
जहां कमी हुई लेना 2.5 साल रे ओना कमिया आपे को सामना रे मेना नुआ सरकार अबुआ सरकार झारखंडी सरकार जहां लेका योजना बना केदा ओना दो आपेया द्वार रे आपेया ओड़ा रे सेटर कते आपेया तीर रे ओना योजना को एम केदा और आपेया नेहोर आपे को ठेन नेहोर ताहे ना है आपे को ठेन अरदास ताहे ना है कि 13 तारीख रे नंबर 1 रे आसार रे बढ़ती ते बढ़ती वोट एम कते अबुआ दादा मंगल कालंदी दादा जिताओ पे नोंडे खोन विधायक बनाओ पे नुई विधायक बनाओ कते अबुआ दादा हेमंत दादा पेरेन हेमंत पेटागे उन्हीं हो मुख्यमंत्री बनाओ बोल उना के संकल्प हटाओ कते नोआ सभा ते चलाओ बोल। आप सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपका प्यार आपका आशीर्वाद आप लोग हम लोगों को दीजिए क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है क्योंकि 5 वर्ष उतार चढ़ाव का रहा है। इस साल में इस कार्यकाल में ऐसे ऐसे दिन हम लोगों ने देखे हैं जान माल की रक्षा के बाद जान बचाने के बाद सब जेल की रास्ता के बाद बहुत काम हुए हैं लेकिन और भी काम करना बाकी है चाहे शिक्षा के स्तर पे हो स्वास्थ्य के स्तर पे हो रोजगार की बातें हो या हमारे मान सम्मान हक अधिकार की बात हो सबके लिए अगर कोई खड़ा है तो हेमंत सोरेन खड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लड़का डरने वाला नहीं है ये सर झुकाने वाला नहीं है ये दिशम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है ये लड़ने वाला बेटा है और आपकी आवाज को बुलंद करने वाला बेटा है। मैं इतनी बातों से ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जोहार करती हूँ लेकिन आखिर में एक नारा साथ में सब लोगों को बोलना है। नारा है एक ही नारा हेमंत दोबारा ठीक है समझ में आया एक ही नारा हेमंत दोबारा एक ही नारा एक ही नारा एक ही नारा एक ही नारा और दोनों हाथ उठा के हमारे जितनी माताएं बहनें हैं दोबारा से दोनों हाथ उठाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। भाई दादा आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए मंगल भैया को और इनको फिर से विधानसभा में इनकी आवाज को बुलंद करना है ये संकल्प लेकर के आप सभी को जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप इतने प्यार से मेरी बातों को सुने हैं। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ प्रणाम करती हूँ और आप सभी को जोहार कहती हूँ। जय हिंद जय झारखंड। हेलो এই সভাটা কি हेलो तो ताए हेलो तो এই সভা চুনাবী সভাটাকে हेलो रूपनारायण मधु बाबू धन्यवाद दिए এই চুনাবী সভাকে সমাপ্ত ঘোষণা করবেন। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर टुडू महाशय के जिन्हें संचालन कर मंच के आज के महागठबंधन सरकार उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक पटमदा अंचल समस्त गुरुजन प्रबुद्ध नागरिक सबाई के आंतरिक अभिनंदन जानाई अनेक अनेक धन्यवाद जानाई
আমাদের এই মহাগঠবন্ধনের